Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Faisal. I am your English teacher. Today we will discuss about the very famous poem Casting and Gathering for Ted Hughes written by Seamus Heaney. So first of all, the poem is dedicated to Ted Hughes, who is a fisherman and a friend of Seamus Heaney. Definition of the title is that casting means throwing, put aside. It also refers to a right-hand side political party, the capitalist. Their motto was individual is everything. Gathering means to collect, harvest. It also refers to left-hand side political party, the socialist. Their motto was individual belong to society. सो अगर डिटेक्टिव पर्पस इसका देखें तो इसका मतलब है एक दूसरों के इख्तलाफ का एहतराम करें। अगर हम इस पोएम के स्टाइल की बात करें तो स्टाइल के लिहाज से दिस पोएम इज कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन एंड 1 ओपनिंग लाइन। देयर इज नो राइम स्कीम, ईच लाइन ऑफ अबाउट 10 syllable. Not strictly follow these rules. It is written in blank verse and simple language is used whole of the poem. So before we talking about the poem, it is necessary to have historical introduction of two political parties, capitalist and socialist. Capitalist promote the capitalism. तो हम अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म एक ऐसा माशी निज़ाम है जिसमें निजी अफराद पैसे और सरमाए के अनदर रिसोर्सेज के मालिक होते हैं। अफराद में निजी कंपनियां हो सकती हैं और वो अपने आज़ादाना तौर पर कारोबार भी चला सकते हैं। कंपनियां दायर कर सकती हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कैपिटलिज्म जो होती है वो प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आसान अल्फाज में सरमायादारी का मतलब है अफराद ही सब कुछ है। इसमें अफराद की आज़ादी और तरक्की पर फोकस किया गया है। सो इन अ वे अब हम इसके दूसरे हिस्से सोशलिस्ट पे चलते हैं। सोशलिस्ट ऑन द अदर हैंड प्रेफर सोशलिज्म, यानी कि यह भी एक ऐसा माशी निज़ाम है जिसमें रियासत रकम और दिगर वसाइल समेत हर चीज़ की मालिक है। इसमें फ़र्द का कोई तसव्वुर नहीं, वो अपने लिए और रियासत के लिए हर फर्द की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। So actually it is emphasis on the equal distribution of wealth among the people. In other words, individual is a party of society. Therefore, the work should be done for society. So casting and gathering is a beautiful poem that shows the conflict between the above said political parties. Actually, casting and gathering are the name of process. Casting refers throwing and gathering refers harvesting. But in this poem, casting means capitalist and gathering means socialist. So Seamus Heaney अपने इन अल्फाज का तर्जमा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता है। वो इन जमातों को मशवरे देता है और इनसे आने वाले पहले और इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं W.B. Yeats, उसने भी पार्टियों को कुछ सजेशन दी हैं। हाउएवर वो इनको बराबर समझता था। सेमस हेनी ने सजेशन दी कि दोनों फ्रीकेन को अपने निजी एजेंडों को एक तरफ रखना चाहिए और माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। उन्हें एक नुक्ते पर समझते हुए उन्हें एक मशवरा देता है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर अवाम को हर चीज से बरतर समझना चाहिए। W.B. Yeats के बरअक्स वो किसी पार्टी को तरजीह नहीं देते। Actually, he considered them equally as both systems are made for the goodness of humanity. Both systems are good for him until they favor people. So in this poem, in fact, is an arbitration between two parties mentioned earlier. There was a conflict between both these parties due to which people were expecting war. Seamus Heaney suggests that they should not fight on minor issues. They should compromise and think about the future of the people. They should give hope to them. They must keep progress while forgetting their clashes. They should create new strategies in order to get success. It is the only way through which they can become successful and get equal sympathy of the people. So the poem Casting and the Gathering एक तर्जुमानी है, ये टेड ह्यूज के लिए है, लिहाजा इसमें एक अमकान मौजूद है कि ये शायर और उसके दरमियान दोस्ती के बारे में है। एक्चुअली इट्स इंटरप्रिटेशन हैज गिवन बाय एंड्रियो बुबुइज। ही हैज गिवन स्ट्रेस ऑन द वर्ड लश एंड हश, but that it is made the poem still discloses the same concept.
It asserts on the importance of compromises. Shimasini is a pure poet, whereas Ted Hughes is only a fisherman. There is a very less similarity in these persons even than they are friends. They have maintained their friendship by means of contrariness. Validity is a friendship is possible only through adjustment and compromises. If this interpretation is considered true, even the concept of the whole poem does not change. Thus, it focuses on the importance of friendship and adjustment. W.B. Yeats ने भी इन पार्टियों के बारे में लिखा था. उन्होंने किसी जमात को बेटर नहीं समझा और ना ही किसी को प्रेफरेंस दी है. इससे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सहमति थी. Shimasini is also focused on compromises. On one side, they are saying that individual is everything, therefore the system is preferable, whereas on the other side, they are talking about the importance of society and equality. He has not advocated any party, he has not shown his sympathy for any of them. According to him, compromise is the only option for them. If they make compromise, then the country will make progress. So there is also a general interpretation of this poem. There may be possibility that the poet has talked about loss and gain. It is general concept. Sometime we lose a thing, sometime we gain it. जिंदगी इसी तरह चलती है. हर एक इसी अमूमी असूल पर कार फरमा है. और इसी तरह अगर हम जिंदगी का मुशाहदा करें तो कास्टिंग एंड गैदरिंग का मतलब है थ्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी लॉस और प्रॉफिट्स. आखिर तक हम इसी असूलों पर चलते रहते हैं. यहां यह बताना बहुत ज़रूरी है कि इस कंसेप्ट में एम्बिग्यूटी पाई जाती है. अगर ज़िंदगी नुकसान और फ़ायदे का नाम है तो फिर किसी को नुकसान पर मातम नहीं करना चाहिए. तो अगर वो नुकसान पर मातम नहीं करे तो फिर हमें चाहिए कि हम जश्न भी अपने फ़ायदे पर ना मनाएं. हाउएवर, अगर इस आम असूल पर अमल किया जाए तो अमन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका यही है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोइम. I will narrate you stanza and its context. The poem starts, years and years ago, these sounds took sides. ओपनिंग लाइन है ये इस पोइम की, यानी सालों और साल पहले इन आवाज़ों ने पहलू लिया. On the left bank, a green silk tapered coast went whispering through the air, saying hush and lush, entirely free, no matter whether it swished up above the hayfield or the river. बाएं किनारे पर एक सब्ज रेशमी टापर्ड कास्ट, जिसे हश कहते हुए हवा से सरगोशी की, और लश मुकम्मल तौर पर आज़ाद. ख्वाह वो कोई बात नहीं, अगरचे ये आवाज़ खास या दरिया के ऊपर कोई सुनी गई हो. तो हम ओवरव्यू ऑफ स्टैंजा करते हैं. क्वाट्रेन स्टैंजा है. क्वाट्रेन स्टैंजा ऐसे स्टैंजों को कहते हैं जिसमें चार लाइनें हों, हर लाइन में 10 सिलेबल हैं. ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है. इसकी लैंग्वेज वेरी सिंपल है और मॉडर्न है. कामे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम. नरेटर के लिहाज से देयर इज़ ओमनिशेंट नरेटर एंड ओमनी प्रेजेंट नरेटर. रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ईयर्स एंड ईयर्स. ये एक लफ्ज ईयर्स और ईयर्स 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस लिहाज से ईयर्स एंड ईयर रेपिटेशन ऑफ. अगर इमेजरी के लिहाज से बात करें तो जब हम ये स्टैंजा पढ़ते होते हैं तो हमारे जहन में कुछ तस्वीरें बनती है. जब राइटर बात करता है लेफ्ट बैंक की तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने एक दरिया है और हम उसके लेफ्ट बैंक पर खड़े हैं. और जब वो बात करता है सिल्क टेपर्ड की और लश की तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने एक चरागाह है और वो सरसब्ज है. तो यहां पर जो राइटर है वो विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल करता है. और इसी के साथ साथ जब हम पढ़ते हैं तो म्यूजिक डिक्शन क्रिएट करने के लिए राइटर एलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है. जब वो कहता है वेंट विस्परिंग, तो जब हम वेंट विस्परिंग करते हैं तो हमारे जुबान में डब्ल्यू की एलिट्रेशन की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है. तो राइटर इस साउंड को क्रिएट करने के लिए डब्ल्यू की एलिट्रेशन इस्तेमाल करता है. और इसी के साथ साथ जब राइटर कहता है दी साउंड टुक साइड वेंट विस्परिंग सेइंग हश, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई एक एलिमेंट आया है और वो हमारे कान के पास खड़ा होकर हश
कह रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी मुख्तलिफ आवाजों की हमें साउंड सुनाई देने लगती है, तो राइटर ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल करता है। तो राइटर अपने इस स्टैंजा में सिंबल का भी इस्तेमाल करता है। जब वो कहता है हश एंड लश, तो इसका मतलब है फियर एंड होप, यानी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। लेफ्ट बैंक की जब बात करता है तो लेफ्ट बैंक इज सिंबलाइज टू सोशलिस्ट पार्टी, यानी यहां पर पॉइंट का हमें कौन सा पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो यहां पर हमें समझ में आ गया कि यहां पर जो हम शीमत सेन पे ये इल्जाम था कि वो पॉलिटिकल पॉइंट है, लेकिन हालांकि शीमत सेन ने खुद इससे नाराज किया है कि वो पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों अब हम दूसरे स्टैंजे पर जाते हैं। तो दूसरे स्टैंजे में कहता है ऑन द राइट बैंक लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक, अ शार्प ratcheting kept on and on, cutting across the stillness as another fisherman gathered line length of his reel. So अब हम इसके जरा तर्जुमे को समझते हैं। तो कहता है दाएं किनारे जैसे तेज रफ्तार कॉर्न क्रैक की तरह, और एक और आवाज सुनाई दी, एक दूसरे की तरह खामोशी को पार करना, माहीगीर ने अपनी रील से डोर जमा के। अब हम इसका ओवरव्यू स्टैंजा का करते हैं। द स्टैंजा हैज क्वार्टेन स्टैंजा, 10 सिलेबल हर लाइन में है, ब्लैंक वर्स में है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, मॉडर्न इसका डिक्शन है, मॉडर्न स्टाइल है, कामे का इस्तेमाल करता है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, और नरेटर ओमनीशिएंट नरेटर है, ओमनी प्रेजेंट नरेटर है। अगर हम इसमें रेपिटेशन की बात करें तो वही सेम रेपिटेशन इस्तेमाल की गई। इमेजिन इसमें राइट बैंक, जब हम इस स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे अब हम रिवर के राइट बैंक पर खड़े हैं, यानी कि यहां पे एक बात याद कर ले, रिवर सिंबलाइज टू लाइफ, यहां पर राइट बैंक। आगे हम जब इसको सिंबल पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगा। फिशरमैन, एक इमेज क्रिएट होता है कि फिशरमैन एक मछेरा एक दरिया के किनारे खड़े होकर मछली पकड़ रहा है, और रील जो उसने पकड़ी हुई है अपनी वो डोरी जिस पे वो लपेट रहा है, तो एक इमेज क्रिएट होता है। तो राइटर अपने इस इमेजिनेशन की जो थीम है और इमेजिनेशन की जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल करते हुए एडिटरी इमेज का इस्तेमाल करता है। जब वो शार्प रेटिटिंग, यानी जब वो लपेट रहा होता है तो वो जो साउंड क्रिएट होता है, और इसी के साथ साथ उसमें एक म्यूजिक क्रिएट करने के लिए तो राइटर क्या करता है, एजोनेंस का इस्तेमाल करता है। एजोनेंस क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ वावल हरूफ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, ऑन एंड ऑन यानी ओ का इस्तेमाल। तो ऑन एंड ऑन का इस्तेमाल करके राइटर यहां पर एजोनेंस और एक म्यूजिकल डिक्शन क्रिएट करता है। तो अब हम इसके सिंबल की तरफ चलते हैं। यहां पर वही इसके जो सिंपल है हश एंड लश फेयर एंड हो। तो हम बात कर रहे हैं सिमिली की। सिमिली एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें राइटर एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करता है। तो इसमें सिमिली जो इस वर्स में इस्तेमाल की गई है, ऑन द राइट बैंक लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक, अ शार्प रैकिंग केप्ट ऑन एंड ऑन। और दूसरी जो इसमें टेक्निक इस्तेमाल हुई है सिमिली के तौर पे, कटिंग अक्रॉस द स्टिलनेस एज अनदर फिशरमैन गैदर्ड लाइन लेंथ ऑफ हिज रील। सो अब हम इसके तीसरे स्टैंजे पे जाते हैं। तीसरे स्टैंजे में कहता है, आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर अवेक एंड ड्रीमी, आई हैव ग्रोन ओल्डर एंड कैन सी देम बोथ मूविंग देयर आर्म्स एंड रॉड्स वर्किंग अवे, ईच वन अब्सॉर्ब्ड पुफ्ड बाय द साउंड्स ही इज मेकिंग। कहता है कि मैं अभी अभी वहां खड़ा हूं, जाग रहा हूं और खाबिदा हूं, मैं ओल्ड हो चुका हूं और इन दोनों को देख सकता हूं, अपनी बाजुओं और सलाखों को मुंतकिल करके दूर के काम करना हर एक जज़ब हो गया है जिसकी आवाज़ वो तैयार कर रही है। सो नाउ वी ओवरव्यू द स्टैंजा। इसमें भी क्वार्टेन स्टैंजा है, हर लाइन में 10 सिलेबल है, ब्लैंक वर्स में है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, मॉडर्न स्टाइल में है, कामे का इस्तेमाल किया गया है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, फर्स्ट पर्सन नरेटर, आई एम फर्स्ट पर्सन नरेटर एंड ओमनी प्रेजेंट नरेटर। ओमनी प्रेजेंट नरेटर वो होता है वो जो नरेटर हर जगह पर मौजूद हो। तो यहां पर हमें फर्स्ट पर्सन से पता चला कि ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है शीमत सेन ने, यानी कि यहां पर हमें पता चलता है कि वो अपने चाइल्डहुड की जो पोएम लिख रहा था, तो यहां पर हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसको क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल टच देकर ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री बना रहा है। और हम इमेजरी की बात करें, आर्म्स एंड रॉड्स, यानी कि जब वो जो बाजू और वो जो रॉड्स काम कर रहे हैं, ग्रोन ओल्डर तो ऐसे लगता है जैसे कोई बूढ़ा हो गया। यहां पर क्या है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है। एलिट्रेशन में कहता है स्टिल स्टैंडिंग, देखें म्यूजिक क्रिएट होता है, स्टिल स्टैंडिंग, एसएस की एलिट्रेशन से एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। एजोनेंस, अवेक एंड ए, ग्रोन ओल्डर ओ, आर्म्स एंड
ए वन अब्सॉर्ब प्रोफूड, यानी यहां पर डबल हो, यानी कि यहां पर क्या है कि राइटर जो है वो म्यूजिकल क्रिएट करने के लिए एजोनेंस का इस्तेमाल करता है। सिंपल, आई हैव ग्रोन ओल्डर, यानी ग्रोन ओल्डर हमें दिखाई देता है कि जैसे क्या है कि कोई बूढ़ा है, यानी यहां पर पता चलता है कि शिमसिनी जो हमें टॉम रोड और वो पीछे जो उसकी शिमसिनी की पोइट्री है कांस्टेबल काल, वहां पर हमें उसकी क्या है कि इमैच्योरिटी की पोइट्री नजर आती है, और यहां पर क्या है हमें पता चलता है कि राइटर कन्फेस कर रहा है कि अब उसकी पोइट्री जो क्या है वो उसकी क्या है कि वो मैच्योरिटी बेस है। तो यहां पर अब हम इसके चौथे स्टैंजे पर चलते हैं। चौथे स्टैंजे पे कहता है वन साउंड इज सेइंग यू आर नॉट वर्थ ट्यूपेंस बट नीदर इज एनीबॉडी सो वॉच नंबर वन। द अदर सेज गो विद इट गिव आंसर यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर। यानी यहां पर हमें एक डायलॉग दिखाई दे रहा है कि एक आवाज कह रही है कि आपको काबिल कदर नहीं होना चाहिए, लेकिन ना ही कोई है। तो देखिए नंबर एक। दूसरा कहता है उसके साथ जाओ, गिव और बी केयरफुल। आप हर वो चीज हैं जिससे आप दरिया के किनारे महसूस करते हैं। तो अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में ये भी स्टैंजा क्वाट्रेन स्टैंजा है, 10 सिलेबल है, नो राइमिंग स्कीम है इसमें, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल करके कामे का इस्तेमाल है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, ओमनी प्रेजेंट नरेटर है, और एडिटरी इमेजरी है। एडिटरी इमेजरी क्या है? जब डायलॉग ऑफ बोथ साउंड्स तो आता है तो उसी के साथ हमें इसकी एडिटरी इमेजरी का पता चलता है। एल्यूट्रेशन, वेंट, विस्परिंग, यानी WW की इसमें एल्यूट्रेशन है। तो हमें यहां पर पता चलता है कि क्या है कि वो अपनी किस तरह लिटरेरी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। पांचवें स्टैंजे में कहता है, अब हम पांचवें स्टैंजे पे आ रहे हैं, कहता है कि आई लव हश्ड एयर, आई ट्रस्ट कॉन्ट्रेरीनेस, ईयर्स एंड ईयर्स गो पास्ट एंड आई कैन नॉट मूव, फॉर आई सी दैट व्हेन वन मैन कैन कास्ट द अदर गैदर्स एंड देन वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग साइड। यानी मुझे हश्ड हवा पसंद है, मुझे तजाद पर एतमाद है, और साल गुजरते हैं और मैं मुंतकिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब एक कास्ट करता है तो दूसरा उसको गैदर करता है, और फिर ये इसके बरक्स पहलू तब्दील किए बगैर ये चलता रहता है। तो अब हम इसका ओवरव्यू करते हैं। क्वाट्रेन स्टैंजा है, 10 सिलेबल हर लाइन में है, ब्लैंक वर्स है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, मॉडर्न डिक्शन इसमें इस्तेमाल किया गया है, कॉमे का इस्तेमाल है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, ओमनी प्रेजेंट नरेटर है, और इमेजरी जहां पे कहता है आई डोंट मूव, तो यहां पर हमें दिखाई देता है वो एक जगह पर खड़ा है और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। अलिट्रेशन में कहता है ईयर्स एंड ईयर्स, यानी वाई की अलिट्रेशन, वाइस वर्सा वी की अलिट्रेशन, एजोनेंस हमने पहले भी बता चुका है, यानी कि राइटर जो है अलिट्रेशन और एजोनेंस किस चीज के लिए टेक्निक इस्तेमाल करता है? म्यूजिक के लिए। यानी कि जब वो चाहता है कि किसी वर्स में म्यूजिक पैदा हो तो वो अलिट्रेशन और एजोनेंस जैसी उस अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो सिंबल कहां पर वो राइटर इस्तेमाल करता है? सिंपल जब उसने अपने वर्स को अहमियत देनी हो, हिस्टोरिकल कंटेस्ट देना हो या कोई अलियन देना हो, तो राइटर क्या है? सिंबल का इस्तेमाल करता है। तो सिंबल में वो इस्तेमाल करता है कास्ट यानी कैपिटलिस्ट, और गैदरिंग सिंबल है सोशलिस्ट। मुख्तसर तौर पर शिमसिनी ने आयरलैंड की तारीख दोहरा दी है। दूसरी नज़मों की तरह इस नज़म में भी वो समाजी तनाज़र में गुफ्तगू करता है। उसके ख्यालात काबिल गौर हैं, वो अमन के जज्बे से वाबस्ता है और वो वार नहीं चाहता। फ्रीकेन के माबैन तसादम तरक्की की मज़ामत है। मजीद ये कि वो जंग का माहौल बना रहे हैं जो कि दानिशमंदाना इंतखाब नहीं है। हिनी अपने मुल्क के और अपने दानिशमंदाना इंतखाबात नहीं है, और वो अपने साथियों से मोहब्बत करता है, वो इनकी फलाह चाहता है, वो उनको अपनी जिंदगी के हर शय से बालातर समझता है, वो शायरी का वफादार है, वो लोगों की खातिर शायरी करता है, वो इसके जरिए इनमें रिफॉर्म्स लाता है। Actually, this poem is entirely social as well as political. It focuses on the importance of push and pull. He also philosophizes the concept of contrariness. If the poem is not political, even then it gives a moral lesson. It is a wise advice on how to keep a relationship alive. However, major wards the political interpretation. Since it is not wrong to say that this poem is counsel to the parties who are quarreling with each other, they should put aside their personal benefit and consider about making progress. They should not consider about their personal grudges, but should focus on the concept of contrariness. At last, but not least, casting and gathering emphasize on the importance of compromise and promotes the philosophy and idea of making adjustment. So dear students,
आई होप कि आप लोगों को इसका क्रिटिकल एनालिसिस समझ में आ चुका होगा। हमारे चैनल को लेक्चर्स हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।